Hello students. So today here we'll continue the same unit number 3, that is admission of a partner. One more sum I will show you related to admission of a partner. So everybody you try to understand. See here one question. Given below is the balance sheet of Krishna and Suresh, who are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. So there are two partners, one is Krishna and other one is Suresh, and whose ratio given 3:2. That is the old ratio. Okay, and their balance sheet also given. So this is the old balance sheet of the old partners. So you see liability side, creditors given, contingency reserve given, capital given of both the partners, that is old partners capital given, and asset side plant and machinery given, patents given, furniture given, stock given, debtors given, cash given. Okay, and this contingency reserve means that is the amount set aside, okay, and that will use for future losses. Okay, that is the contingency reserve, and this reserve belongs to existing partners, belongs to old partners. Who are the old partners? That is Krishna and Suresh. So this contingency reserve will be transferred to the old partners capital account in their old ratio, that is 3:2. Okay, so remember this contingency reserve will be transferred to old partners capital account. After transferring contingency reserve, so when you will prepare the new balance sheet, that is for Krishna, Suresh and whoever the new partner, when you will prepare new balance sheet, in this case this contingency reserve will not be recorded in the new balance sheet, because this contingency reserve distributed to old partners in their old ratio. Okay, now capital account, this capital account that is given Krishna and Suresh, that is old partners capital, and this capital also will be brought down to the, or will be transferred to the old partners capital account. Okay, next, and these creditors you will show where in new balance sheet. Okay, then plant and machinery you have to record where in new balance sheet, patents also, furniture also, stock also, debtors also, cash also. But before that we have to check what is that adjustment. So on that date Mohan is admitted as a new partner. So Mohan is a new partner who's sharing profit, that is 1/5 share on the following terms. Next, what are the adjustments here given? Everybody you try to understand here. He is to be contributed. He means new partner, that is a Mohan. Mohan contributed rupees total 14,000 as his share of capital, which includes his share of premium for goodwill. That means this 14,000 included what is that premium for goodwill. But before that, now this 14,000 is the total amount. Okay, total amount means that is here capital amount also include and premium for goodwill amount also include in this 14,000 rupees. So you have to find out how much capital out of this 40,000 rupees and how much share of premium for goodwill included in this 14,000 rupees. Okay, next, see point number 5. Goodwill is valued at 2 years purchase of the average profit of the last 4 years, which were rupees 10,000, 9,000, 8,000 and 13,000 respectively. So you have to calculate goodwill here. Already this topic you have done in my previous video, that is the valuation of goodwill, where you have learned how to calculate the value of goodwill, right? So this one given here. The goodwill is valued at 2 years purchase, the number of years purchased 2, and which method? That is the average profit method here given. Last 4 years, the 4 years profit here given 10,000, 9,000, 8,000, 13,000. So for this you have to first calculate average profit. So all these 4 years profit you have to add together and divide it by 4 years. So you will get average profit. After getting average profit, then you have to calculate goodwill of the firm, and goodwill which method here asked? Average profit. The goodwill is equal to average profit into number of years purchased. So how much average profit you will get will be multiplied by number of years, that is 2. In this way you will get the goodwill of the firm. After getting goodwill of the firm, then you have to calculate new partner share of goodwill. Okay, then you can say that how much goodwill of the firm and how much capital of this 14,000 rupees. Next, plant is to be written down to rupees 25,000 and patents written by rupees 8,000. So plant assets, patents also assets. That means here you have to calculate whether assets increase or decrease
Okay, that means revaluation of assets. Revaluation of assets. Okay, the question what asks to prepare the revaluation account, partners capital account and the balance sheet of the new firm. So you have to prepare revaluation account, you have to prepare partners capital account and you have to prepare balance sheet of the new firm. Okay, so everybody you understood the question. So everybody also you try to understand the solution. I'll show you now. Okay, तो सी हेयर स्टूडेंट, कृष्णा एंड सुरेश ये दो ओल्ड पार्टनर है जिसका रेशियो है 3:2. ओके, ओल्ड रेशियो. सेकंड पॉइंट, मोहन इज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. ठीक है, मोहन का जो शेयर है 1/5 है. मोहन ने क्या लाया, कैपिटल लाया और क्या लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया. लेकिन ये मेंशन नहीं था कि उसने कैपिटल का अमाउंट कितना लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कितना लाया. लेकिन दोनों को मिलाकर टोटल कितना लाया, 14,000 रुपीज लाया. ठीक है, तो अभी 14,000 रुपीज में से कैपिटल कितना है, प्रीमियम कितना है, इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो उसके लिए पॉइंट नंबर 3 को फॉलो करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 3 जो है गुडविल का अमाउंट हमें नहीं दिया है तो गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. तो 4 years प्रॉफिट यू हैव टू ऐड टुगेदर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 4. देन इफ यू ऐड ऑल दिस 4 years प्रॉफिट यू विल गेट 40,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 4, देन यू विल गेट 10,000 रुपीज, दैट इज द एवरेज प्रॉफिट. आफ्टर गेटिंग एवरेज प्रॉफिट देन यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एंड व्हिच मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड. तो फॉर दिस यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. ओके, सी हियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. Okay, now after this average profit, how much you got, 10,000 rupees and number of years 2. If you multiply these two then you will get 20,000 rupees, that is the goodwill of the firm. Okay, now you have to calculate new partner share of goodwill, that is the Mohan shares of goodwill. तो total goodwill how much you got, 20,000 rupees and Mohan share is 1/5 है ना. तो 5 रुपीज 5 से क्या कर देना है, 20,000 को डिवाइड कर देने से क्या 4,000 आ रहा है. तो इसका मतलब है मोहन जो है न्यू पार्टनर जो है वो 4,000 गुडविल के अमाउंट लाया. ठीक है, तो अभी हमें क्लियर हो गया कि 14,000 टोटल अमाउंट जो लाया, 14,000 टोटल अमाउंट में से 4,000 क्या है, गुडविल है. 4,000 क्या है स्टूडेंट, गुडविल है. ठीक है, 4,000 गुडविल है. इसका मतलब बचा कितना, 10,000. वो 10,000 हो जाएगा कैपिटल. गॉट इट, क्लियर पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4. अच्छा, इसके बाद न्यू पार्टनर जो कैपिटल लाया, न्यू पार्टनर कैपिटल लाया तो उसके लिए एंट्री होगा और साथ में वो प्रीमियम लाया उसके लिए एंट्री होगा, है ना. क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट. और इसका बाद वो जो प्रीमियम जो लाया वो प्रीमियम किसके लिए लाया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लाया, राइट. सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो ये हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशियो होना पड़ेगा. लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं था, सिर्फ ओल्ड रेशियो ही देखे था. तो ओल्ड रेशियो को ही न्यू रेशियो बोला जाएगा. ओके, जो यहां में ओल्ड रेशियो है उसी को ही एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही बोला जाएगा. ओके, मैंने पहले भी समझाया था कि यहां में जो ओल्ड रेशियो है, मैंने यहां में न्यू रेशियो बोला है, एक्चुअली मैंने रॉन्ग बोला है. तो यहां में जो ओल्ड रेशियो है, अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोला जाएगा. ओके, ये सब मैंने पहले भी आप लोगों को सिखाया है. ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो इसके लिए जो एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट. और कौन से रेशियो से, सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्या होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:2. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, प्लांट और पेटेंट दो एसेट्स था जिसका रिवैल्यू हुआ. तो रिवैल्यू जब हुआ तो रिवैल्यूएशन में क्या होता है, या तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा या तो एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा, या तो लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा या तो लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा. ठीक है, तो समझता है कि हमें प्लांट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है. तो देखो सबसे पहले मैंने प्लांट लिखा, तो प्लांट कितना है, 30,000. ये ओल्ड वैल्यू है, मतलब जो बैलेंस शीट में था. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया था पॉइंट नंबर सी में, प्लांट टू बी रिटर्न डाउन टू ₹25,000. तो ये हमें याद रखना ये बात, टू लिखा है. इसका मतलब है, टू का मतलब है तक, मतलब 25,000 तक रिटर्न डाउन हो गया. ठीक है, इसका मतलब जो ओल्ड वैल्यू है वो 30,000 से इसका वैल्यू हो गया 25,000 तक. ठीक है, इसका मतलब वैल्यू कितना डिक्रीज हो गया, 5,000 डिक्रीज हो गया. तो एसेट्स का वैल्यू मतलब प्लांट का वैल्यू डिक्रीज हो गया. तो अगर एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है इसका मतलब है लॉस है.
तो लॉस होने से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में इसको शो करोगे। तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू प्लांट अकाउंट, कितना अमाउंट 5000 डिक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पैटर्न्स, पैटर्न्स का जो ओल्ड वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू था, ओल्ड पार्टनर्स का जो बैलेंस शीट था उसमें ओल्ड वैल्यू था कितना था 5000, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट था उसमें क्या लिखा था, पैटर्न्स रिटर्न अप बोला है, मतलब इंक्रीज बाय ₹8,000। तो याद रखना स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन में बाय लिखा है तो इसका मतलब जो अमाउंट हमें शो किया, बाय मतलब से, यहां से, ठीक है ना। तो 8,000, तो 8,000 इंक्रीज हुआ है यहां में, ओके। 8,000 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहां में आपको क्या करना है, देखो ओल्ड वैल्यू कितना है 5000, न्यू वैल्यू कितना दिखा रहा है 8,000, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ, 8,000 इंक्रीज हुआ। जब बाय लिखेगा तब इसमें जैसे माइनस किया है ना, माइनस कब करेगा, जब क्वेश्चन में 2 लिखा होगा, मतलब ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू दोनों को कंपेयर करके इसके बाद जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ या जितना डिक्रीज हो आपको देखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बाय लिखा है तो कुछ हमें माइनस प्लस नहीं करना है, ठीक है। जो अमाउंट है बाय लिख के जो अमाउंट लिखा होता है वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ये इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ कैसे पता चला, तो यहां में रिटर्न अप लिखा है, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है मतलब ये प्रॉफिट हुआ है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा साइड में दिखाया जाएगा, क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट, कॉन्टेंजेंसी रिजर्व। कॉन्टेंजेंसी रिजर्व का मतलब मैंने क्या समझाया था कि ये अमाउंट सेट असाइड साइड में करके रखा है ताकि फ्यूचर में अगर कुछ भी लॉसेस होता है तो इस अमाउंट को यूज किया जाएगा। तो ये पैसा किसका है, ये कॉन्टेंजेंसी रिजर्व बैलेंस शीट में था, किसका बैलेंस शीट में, ओल्ड पार्टनर का बैलेंस शीट में। तो ये पैसा किसका है, ओल्ड पार्टनर का है। तो न्यू पार्टनर एडमिशन होने से पहले या न्यू पार्टनर जब एडमिशन हो रहा है तो उससे पहले ये अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर का है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर का बीच में, कौन सा रेशियो से, ओल्ड रेशियो से, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो से, ओल्ड रेशियो से। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किसका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और ये जो प्लांट और पैटर्न है, दो एसेट्स है, इसका रिवैल्यूएशन हुआ, एक हुआ डिक्रीज और एक हुआ इंक्रीज। तो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज अगर होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो किया जाता है, ओके। तो नाउ विल चेक द सॉल्यूशन, गॉट इट। हम लोग अभी देखेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया, मैंने जर्नल एंट्री भी आप लोगों को समझाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाया, और क्या समझाया, बैलेंस शीट समझाया। तो अभी फिर से एक बार मैंने सब कुछ समझा दिया। अभी इस सोल्यूशन को दिखाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिखाएगा और साथ में बैलेंस शीट दिखाएगा, वो भी न्यू बैलेंस शीट, ओके। तो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां में होगा डेबिट और यहां में होगा क्रेडिट, राइट साइड क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना है, ठीक है। पार्टिकुलर्स रुपीस, पार्टिकुलर रुपीस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखेगा, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेगा। कौन सा एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेगा, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां में स्टूडेंट मैंने क्या बोला था कि देखो यहां में जो प्लांट है, प्लांट का वैल्यू यहां में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट, मतलब लॉस हो रहा है। तो ये कौन सा साइड में शो होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड में। कितना अमाउंट शो करना है, 5000, जितना डिक्रीज हुआ उतना अमाउंट शो करना है। तो देखो यहां में प्लांट 5000 रुपीज लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो पैटर्न्स है स्टूडेंट्स, पैटर्न, तो पैटर्न का वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ, 8000 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज मतलब प्रॉफिट, तो एक क्रेडिट साइड में दिखाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो बाय पैटर्न्स 8000 रुपीज दिखा दिया। दो ही एसेट्स था और तो कुछ था नहीं, लायबिलिटी तो था नहीं, है ना, नहीं है। तो बस अभी देखना है कि कौन सा साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा आ रहा है तो सेम टोटल यहां में लिख देगा और इस टोटल से 5000 को माइनस कर देगा। तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आया वो 3000 प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां में लिखना है 2 कैपिटल अकाउंट और उसका नीचे में 2 ओल्ड पार्टनर का नाम लिख दो और 3000 को कौन सा रेशियो से डिवाइड करना है, जो 3:2 था, ओल्ड रेशियो 3:2 से अगर आप डिवाइड कर देते हो 3000 को तो 1800 आएगा और 1200 आएगा, ठीक है। और यहां में क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड, मतलब ये जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट हो गया ये ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी देखो स्टूडेंट यहां में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले यहां में क्या लिखना है, यहां में भी स्टूडेंट डेबिट लिखना है और यहां में क्रेडिट साइड में, दैट इज राइट साइड में क्रेडिट लिखना है। इसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, ओल्ड पार्टनर का नाम और न्यू पार्टनर का नाम लिखना है। फिर डेट, पार्टिकुलर्स, ओल्ड पार्टनर का नाम और न्यू पार्टनर का नाम लिखना है, ओके। सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल, ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल ओल्ड बैलेंस शीट में था उसी को ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में,
ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में कितना था, कृष्णा का कैपिटल 30,000 था और सूरज का कैपिटल 20,000 था, ठीक है ना। उसी को बैलेंस ब्रॉट डाउन करना था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कृष्णा का कॉलम में लिखा है 30,000 और सूरज का कॉलम में लिखा है 20,000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो समझाया था कॉन्टिजेंसी रिजर्व, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ था, है ना नहीं, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये जो समझाया था मैंने कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ये ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट है, जो ये न्यू पार्टनर जब एडमिशन होता है तो उस टाइम में क्या किया जाता है, इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो से डिवाइड कर दिया जाता है 5,000 को, ठीक है। तो ये हमें देखो बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व, ठीक है, ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहा है, तो प्रॉफिट अगर ट्रांसफर करें तो कौन सा साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। तो बाय कॉन्टिजेंसी रिजर्व कौन से रेशियो से, दैट इज 3:2 ओल्ड रेशियो। तो कॉन्टिजेंसी रिजर्व था 5,000, 3:2 से करने से दैट मीन्स 3/5 है ना, 3/5 रेशियो होगा, 3/5 इंटू कितना 5,000, तो इसका मतलब है यहाँ में 3,000 होगा और यहाँ में 2,000 होगा। ओके, नेक्स्ट इस रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट, ये जो प्रॉफिट हुआ ओल्ड पार्टनर का, इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए हम स्टूडेंट बाय रिवोल्यूशन अकाउंट लिखा है। कितना प्रॉफिट हुआ 1,800 और 1,200 दोनों पार्टनर का। अगर लॉस होता है स्टूडेंट तो यहाँ में लिखना है रिवोल्यूशन अकाउंट में और इस लॉस को ट्रांसफर करना है डेबिट साइड में। तो क्या लिखना है, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और जो लॉस हुआ यहाँ में लिख देना है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ में प्रॉफिट हुआ है तो यही देखना है। इसका बाद स्टूडेंट न्यू पार्टनर ने क्या लाया, न्यू पार्टनर ने कैपिटल लाया, तो या तो ये में बाय कैश अकाउंट लिखो या बाय बैंक अकाउंट लिखो, ठीक है ना। लिखने के बाद न्यू पार्टनर ने जो कैपिटल लाया है ना, वो न्यू पार्टनर का कॉलम में लिखना है मोहन। तो न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो उसका जर्नल एंट्री होता क्या है, जर्नल एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसलिए हमें बाय कैश अकाउंट, आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 10,000 रुपीज। ओके, इसके बाद न्यू पार्टनर ने और क्या लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, है ना नहीं। तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका एंट्री होता क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कृष्णास कैपिटल अकाउंट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो यह में आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है ना। तो गुडविल का अमाउंट जो आया था स्टूडेंट, गुडविल का अमाउंट मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया था, कितना देखो यह में 4,000 आया ना, 4,000 आया, ये 4,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कौन से रेशियो से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए अगर क्या होता है न्यू रेशियो भी होना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो को ही क्या बोलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो इस 4,000 को 3:2 से डिवाइड कर देना है। तो ये मैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो 4,000 जो है 3:2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो इसमें एक्चुअली गलत लिखा है, यहाँ में होगा 2,000, यहाँ में होगा 2,400 और यहाँ में होगा 1,600। बुक भी कभी कभी गलती कर देता है, ठीक है। तो यहाँ में होगा 2,400 और यहाँ में होगा 1,600। इसका बाद डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो अभी टोटल करना है। यहाँ में टोटल आएगा 10,000, यहाँ में टोटल करेगा 20,000 प्लस 2,000, 22,000 प्लस 1,000, 23,200, 23,200 और यहाँ में 600, 23,800, 23,800, 24,800, ठीक है टोटल। फिर यहाँ में टोटल कर देना है 30,000, फिर 3,000 प्लस 1,800 प्लस 2,400, टोटल करने से 37,200। बस ये तीनों कॉलम का अमाउंट यहाँ में लिख देना है। तो कृष्णा का जो टोटल आया 37,200, यहाँ में कृष्णा का कॉलम में लिखना है। सूरज का जो कैपिटल आया 24,800, सूरज का कॉलम में लिख देना है। और मोहन का जो टोटल अमाउंट आया यहाँ में, ये अमाउंट मोहन का कैपिटल टोटल कॉलम में लिख देना है। इसके बाद हमें कुछ माइनस करने का है नहीं, तो यही बैलेंस हो जाएगा बैलेंस शीट। तो यहाँ में लिखना है टू बैलेंस शीट 37,200, 24,800 और 10,000। तो इस तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाया जाता है। तो यहाँ में जो न्यू कैपिटल आया आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो कृष्ण का जो कैपिटल हुआ 37,200, सूरज का कैपिटल है 24,800, मोहन का कैपिटल है 10,000। तो ये तीनों कैपिटल को कहाँ दिखाना है, न्यू बैलेंस शीट में दिखाना है। तो चलो देखो अभी यहाँ में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ कृष्णा, सुरेश एंड मोहन, ठीक है ना। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में आ जाओ। तो लायबिलिटी साइड में देखो स्टूडेंट, मैंने पहले बोला था कि जो ओल्ड बैलेंस शीट है, उस ओल्ड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या था, क्रेडिटर्स था। तो क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट जितना है उतना ही लिख देना है। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स का अमाउंट था 15,000, तो 15,000 अमाउंट ही लिख देना है कि इसका कोई एडजस्टमेंट था नहीं। इसके बाद लायबिलिटी साइड में था कैपिटल। तो कैपिटल, उस कैपिटल ओल्ड कैपिटल को तो हम लोग ट्रांसफर कर दिया था
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना। तो इसके बाद न्यू कैपिटल जो निकल कर आया 37,200, 24,800 और 10,000, इसी को यहाँ में लिखना है। तो यहाँ में लिखना है कैपिटल अकाउंट कृष्णा का 37,200, सुरेश का 24,800, मोहन का 10,000। इसको तीनों को टोटल करके 72,000 आ गया। दोनों को प्लस कर देने से 87,000 आ गया, ठीक है। इसी तरह एसेट साइड में स्टूडेंट सबसे पहले था प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड वैल्यू कितना था? ओल्ड वैल्यू था 30,000। कितना था? 30,000 था, है ना। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट का जो वैल्यू था वो डिक्रीज हो गया था, है ना। कितना डिक्रीज हो गया था? 5,000 रुपीज डिक्रीज हो गया था। तो 5,000 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो इसका मतलब है प्लांट एंड मशीनरी का जो न्यू वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 25,000, ठीक है। इसके बाद पैटेंट्स का जो वैल्यू था ओल्ड बैलेंस शीट में वो था 5,000, ठीक। और इसका बाद पैटेंट्स का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया था? 8,000 और इंक्रीज हो गया था। तो इसका मतलब पहले पैटेंट्स का वैल्यू था 5,000 और अभी इसके बाद और 8,000 इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब है 13,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद फर्नीचर का कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू था वही लिखना है 3,000। स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो स्टॉक का जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा था वही लिखना है 16,000 रुपीज, ठीक है। फिर डेटर्स का कोई एडजस्टमेंट था नहीं, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो डेटर्स का वैल्यू था वही लिखना है 15,000 रुपीज। फिर कैश, अभी देखो कैश का जो बैलेंस था ओल्ड बैलेंस शीट में वो था 1,000 रुपीज, ये लिखा। अभी देखो स्टूडेंट न्यू पार्टनर क्या लाया? न्यू पार्टनर कैश का फॉर्म में क्या लाया? कैपिटल लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, है ना। नहीं, कितना लाया? टोटल 14,000, मतलब कैपिटल आया 10,000 और गुडविल आया 4,000। तो कैश का साथ ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो इस तरह टोटल कर देगा तो 15,000 रुपीज हो गया। बस इसके बाद टोटल कर देना है, तो यहाँ में ऐड जाए 87,000, ठीक है। दोनों साइड इक्वल हो गया। तो यहाँ में जो वर्किंग नोट दिखाया गुडविल का वही मैंने जो दिखाया था वही वर्किंग नोट यहाँ में शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह एडमिशन ऑफ ए पार्टनर किया जाता है। तो इस तरह प्रिपेयर किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट, और जर्नल एंट्री भी मैंने दिखाया था, है ना। नहीं है प्रीवियस वीडियो में। तो इसका बाद मैं स्टूडेंट दिखाने वाला हूं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट चैप्टर में जाने वाला हूं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। इसी तरह ही बनाना है। अगर एडमिशन समझ में आ गया तो फिर रिटायरमेंट भी आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो ओके देन, थैंक यू फॉर टुडे।